students, we are going to start 3.5. This exercise is done by the method of cross multiplication. By cross multiplication, how we can solve the problem? Let us consider two equations in a standard form. a1x b1y plus c1 is equal to 0. Second equation a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. This question is to be solved by method of cross multiplication. So write here x, y and 1. Start writing coefficient of y b1, b2, next c1, c2, b1, b2, c1, c2, and then a1, a2, a1, a2. Again repeat b1, b2. अब यहाँ पर हमें लिखना है x, y and 1. First multiply diagonally element. In every case, multiply this diagonal element and subtract two product of this diagonal element. Product of these two is b1 c2 minus b2 c1 and is equal to y upon c1 a2 minus c2 a1. c1 a2 minus c2 a1 is equal to 1 upon a1 b2 minus a2 b1. a1 b2 minus a2 b1. This ये रिलेशन हमें फार्मूला बताता है कि x कैसे निकल आएगा. x is equal to this denominator get multiplied by this one, and the answer of x is b1 c2 minus b2 c1, b1 c2 minus b2 c1 divided by this get multiplied by 1 divided by a1 b2 minus a2 b1. Next to get y को find out करने के लिए this denominator get multiplied by this one. So y is equal to c1 a2 minus c2 a1, c1 a2 minus c2 a1 divided by a1 b2 minus a2 b1. This is a method of solution. Let us try with question in your exercise. Question number 1. Which of the following pairs of linear equations has unique solution, no solution, or infinitely many solutions? In case there is a unique solution, find it by using cross multiplication method. Equation exercise 3.5 question number 1. क्वेश्चन हमें पता करना है कि गिवन सेट ऑफ इक्वेशन में विच सिस्टम ऑफ इक्वेशन है गेट यूनिक आंसर और यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन. तो ये टॉपिक हम
प्रीवियस एक्सरसाइज में कर चुके हैं। हमें फाइंड आउट करना है A1 अपॉन A2। यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 1 है, A1 इज 1, also A2 is 3। B1 by B2, B1 by B2, B1 is -3, B2 is -9, नेगेटिव काट दें, 3 3 जा 9, आंसर इज 1 अपॉन 3। नेक्स्ट है C1 अपॉन C2, C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू 3 अपॉन 2। तो इसमें से हम देख रहे हैं A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2, बोथ रेशियो आर इक्वल सेम, बट C1 upon C2 are different. It is not equal to C1 upon C2. This implies that system of equation has no solution. Therefore, pair of equations have no solution. No solution. It means both equations represent parallel line on graph. ग्राफ पर ये दोनों लाइन को प्लॉट करने पर पैरेलल बनेगा। दे आर नॉट मीटिंग एट एनी पॉइंट, देयरफॉर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज कर रहे हैं। तो एक फॉर्मेट याद रखना है कि इक्वल टू में जीरो, इक्वल टू के बाद जीरो होना चाहिए, मतलब इस कांस्टेंट को दोनों ही इक्वल के साइज में होना चाहिए। तो फर्स्ट प्रोसेस हमारा है 2x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सेकेंड है 3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट है कोएफिशिएंट ऑफ y से शुरू करते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ y 1 and 2, 1 2, कांस्टेंट टर्म -5 -8। उसके बाद हम x का कोएफिशिएंट लिखते हैं 2 and 3। देन y का कोएफिशिएंट अगेन रिपीट करते हैं 1 and 2। सारे क्वेश्चन में सेम प्रोसेस फॉलो करना है। यहाँ x लिखें, यहाँ y लिखें और यहाँ 1 लिखें। अब x अपॉन दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस माइनस दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, which is -8 minus 2 into -5 is -10 is equal to y upon this multiplied by this minus this multiplied by this. -5 into 3, -15 minus -8 into 2, -16 is equal to 1 upon this 2 2 जा 4 minus 3 1 जा 3, 4 minus 3। इसको और मॉडिफाई करें, इक्वेशन को और सिंप्लीफाई करें। x अपॉन -8 प्लस 10 विच इज x अपॉन 2, y अपॉन प्लस 16 minus 15 is 1 and 1 upon 4 minus 3, 1 upon 1 को हम 1 लिख सकते हैं। अब x इज इक्वल टू y को ड्रॉप कर लें, x बाई 2 इज इक्वल टू 1 दिखाएं, देन x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई होगा 2 एंड y इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज 1, y is equal to 1. This is the answer. Take A1 upon A2 is equal to 3 upon 6. Simplify कर लें 1 by 2. B1 upon B2 is equal to -5
अपॉन -10 ये भी काटें, ये भी 1/2 हो जाएगा एंड C1/C2 इज इक्वल टू 20/40। C1/C2 इज इक्वल टू 20/40। इसको भी काटें, 1/2 आएगा। इसका मतलब हुआ A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 all are equal to 1/2. Therefore, equation have infinite solution और coincident line। दोनों इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो एक ही लाइन क्या आएगा, या फिर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो इस क्वेश्चन को हमें यहीं पे छोड़ना है। तो दिस इज आंसर। लेट अस चेक द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करें A1/A2 विच इज इक्वल टू 1/3। B1/B2 is equal to -3/-3। तो दिस इज 1। इसका मतलब कि A1/A2 not equal to B1/B2। 1/3 and 1 are not equal to B1/B2। Therefore, इसका मतलब हुआ इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन। और इन केस ऑफ यूनिक सॉल्यूशन हमें इसको सॉल्व करना है, इक्वेशन के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं। तो इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड, x y 1 x से पहले y का कोएफिशिएंट विच इज -3, उसके बाद कांस्टेंट टर्म -7, -15, उसके बाद वापस आते हैं x का कोएफिशिएंट 1 3 एंड देन y का कोएफिशिएंट रिपीट होगा -3। सॉल्व करने के लिए हम लिखते हैं x/15 3 45, बोथ इज नेगेटिव, तो प्रोडक्ट इज पॉजिटिव। 45 माइनस का साइन, 7 3 21, 45 माइनस 21 इज इक्वल टू y/7 3 21, -21 एंड 15 1 15 माइनस इसका प्रोडक्ट -15 इज इक्वल टू 1/, दिस इज -3 एंड दिस इज -9। -3 माइनस -9। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं इनको। x/24 इज इक्वल टू -21 plus 15 is -6 and y/6 is equal to -3 +9 which is 6, 1/6। तो x का वैल्यू फाइंड आउट करना हो तो y को हम छुपा दें, मतलब इग्नोर करें एंड दिस इज इक्वल टू दिस लिखें। x/24 is equal to 1/6। therefore x is equal to 24 डिनोमिनेटर में है, यहाँ मल्टीप्लाई होगा न्यूमिनेटर पर। x is equal to 1/6 multiplied by 24। 6 4 जा 24, therefore x is equal to 4। नाउ ये दो रिलेशन कंसीडर करते हैं। y का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इनको ड्रॉप कर देते हैं।
y upon -6 is equal to 1/6. Therefore, y is equal to 1/6 multiplied by -6. 6 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 into -1 is -1. y is equal to -1 और हम पहले फाइंड आउट कर चुके थे x is equal to 4. This is the answer. Question number 2. First part. For which values of a and b does the following pair of linear equations have an infinite number of solutions? Question number 2. First part of question number 2. Find the value of a and b so that system of equation gives infinitely many solution. तो हम infinitely many solution का कंडीशन याद करते हैं. a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2. तीनों रेशियो इक्वल होना चाहिए. तो a1 कोएफिशिएंट ऑफ x is 2 upon a2 a minus b is equal to b1 is 3 and b2 is a plus b is equal to c1 is 7 and c2 is 3a plus b minus 2. दो पेयर को सिंप्लीफाई करके इक्वेशन बनाते हैं. लाइक हमने इन दोनों पेयर को मल्टीप्लाई कर दिया. दिस इनटू दिस इज इक्वल टू दिस इनटू दिस. 2a plus 2b is equal to 3a minus 3b. 3a minus 3b. b को इधर ले आते हैं, a को इधर ले जाते हैं, तो 3b इधर पॉजिटिव और 2a उधर नेगेटिव. LHS में आकर के 3b पॉजिटिव हो जाएगा प्लस 2b और RHS में 2a नेगेटिव हो जाएगा. 3a minus 2a. 3a minus 2a is a and a is equal to 3b plus 2b which is 5b. This is equation number 1. अब नेक्स्ट इक्वेशन इन दोनों रिलेशन को सॉल्व करते हैं. तो दिस डिनोमिनेटर multiplied by 3 is equal to this a plus b multiplied by 7. This is the process of cross multiplication. 3 multiplied by 3a is 9a. 3 multiplied by b is 3b. 3 multiplied by minus 2 is minus 6. It is equal to 7 multiplied by a plus 2. 7 multiplied by a is 7a and 7 multiplied by b is 7b. Now इस इक्वेशन में हम इनको दोनों को इधर ट्रांसफर कर लेते हैं. 9a minus 7a is 2a. 3b minus 7b is minus 4b and 6 को ट्रांसफर करें इट इज 6. थोड़ा और सिंप्लीफाई करें, 2 ले ले कॉमन. a माइनस 2b इज इक्वल टू 6. 2 पूरे में मल्टीप्लाई है तो दोनों साइड से हम कैंसिल आउट कर सकते हैं. 2 1 जा 2, 2 3 जा 6. thus a minus 2b is equal to 3. This is equation number 2. But in equation number 1 we have a is equal to 5b. To put the value of a which is 5b from 1 from equation 1 and 2 दोनों का यूज किया. 1 से a का वैल्यू पिकअप किया और 2 में ड्रॉप कर दिया इंस्टेड ऑफ a. तो a इज इक्वल टू 5b माइनस 2b इज इक्वल टू 3.
5b minus 2b is 3b is equal to 3. This implies that, or therefore b is equal to 3 divided by 3, 1. b के वैल्यू को इस इक्वेशन 1 में फीड कर दें. a is equal to 5 multiplied by 1 is equal to 5. a is equal to 5 and b is equal to 1. This is the value of a and b for which given system of equations has infinitely many solutions. Second part of question number 2. We have to find out the value of k for which system of equation has no solution. So condition for no solution, a1 upon a2 is equal to b1 upon b2, but it is not equal to c1 upon c2. Feed all the values. a1 is 3, a2 is 2k minus 1. 3 upon 2k minus 1 is equal to y का कोएफिशिएंट 1 है, 1 अपॉन k माइनस 1 इज इक्वल नॉट इक्वल टू 1 अपॉन 2k प्लस 1. तो राइट हेयर 3 मल्टीप्लाइड बाय, क्योंकि ये इक्वल नहीं है तो इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे. 3 मल्टीप्लाइड बाय k माइनस 1 is equal to 2k minus 1 multiplied by 1. This gives 2k minus 1. मल्टीप्लाई कर दें इनको. 3k minus 3 is equal to 2k minus 1. 2k को ट्रांसफर कर लें इधर और 3 को RHS में. 3k minus 2k is k and RHS में नेगेटिव 1 है और नेगेटिव 3 प्लस हो जाएगा 3. दिस implies that k is equal to 2. This is the answer for values of k for which system of equation given in question has no solution. Question number 3. Solve the following pair of linear equations by substitution and cross multiplication methods. This question according to NCERT हमें दोनों मेथड से, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन एंड मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करना है. तो हम सब्स्टिट्यूशन नहीं यूज करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम प्रीवियस एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं. तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड फ्रेश है, नया है, इसलिए हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसको सॉल्व करते हैं. फर्स्ट प्रोसेस, ये कांस्टेंट टर्म इक्वल से इधर लाएं. 8x प्लस 5y माइनस 9 इज इक्वल टू 0. सेकेंड इक्वेशन 3x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0. अब सारे कोएफिशिएंट को y से शुरू करके 5 to माइनस 9 माइनस 4 8 3 5 2 इज रिपीटेड. यहाँ और यहाँ 5 2 रिपीट हो रहा है, मतलब y का कोएफिशिएंट दोनों जगह है. यहाँ कांस्टेंट टर्म है, यहाँ x का कोएफिशिएंट है. अब इन बिटवीन दिस वॉल्यूम हमें x लिखना है, यहाँ पर y लिखना है और यहाँ पर 1 लिखना है. नाउ प्रोसेस लगा दें. दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस माइनस दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, एंड इसको हम x के नीचे लिखें. x अपॉन 5 4 जा 20 नेगेटिव 20, क्योंकि 4 नेगेटिव है, माइनस का साइन फॉर्मूले में आएगा इनटू 2 9 जा 18 नेगेटिव 18 इज इक्वल टू x अपॉन y अपॉन नेगेटिव 9 इंटू 3 नेगेटिव 27
minus 8 into 4, negative 8 into negative 4 into 8 is negative 32 is equal to 1 upon 8 to the 16 minus 15. 1 upon 1. 16 minus 15 is 1. इसको और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखें, x अपॉन नेगेटिव 20, नेगेटिव एंड नेगेटिव पॉजिटिव, प्लस 18 इज इक्वल टू y अपॉन नेगेटिव 27 प्लस पॉजिटिव 32 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 इज 1. x का वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों रिलेशन को कंसीडर करें, y को ड्रॉप कर लें, तो x इज इक्वल टू x अपॉन नेगेटिव 20, x अपॉन नेगेटिव 2, नेगेटिव 20 प्लस 18 इज नेगेटिव 2, x अपॉन नेगेटिव 2 इज इक्वल टू 1. दिस implies that x इज इक्वल टू नेगेटिव 2. नेगेटिव 2 इस 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, विच इज नेगेटिव 2. x इज इक्वल टू नेगेटिव 2. एंड अब y का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इस रिलेशन को इनके साथ इक्वेट करें, तो y अपॉन नेगेटिव 27 प्लस 32 इज 5. y अपॉन 5 इज इक्वल टू 1. This implies that therefore y is equal to 1 into 5 is 5. So set of answer x is equal to negative 2 and y is equal to 5. This is your answer. Form the pair of linear equations in the following problems and find their solutions, if they exist, by any algebraic method. A part of monthly hostel charges is fixed and the remaining depends on the number of days one has taken food in the mess. When a student A takes food for 20 days, she has to pay ₹1,000 as hostel charges, whereas a student B who takes food for 26 days pays ₹1,180 as hostel charges. Find the fixed charges and the cost of food per day. First part of question number 4 is based on hostel charges which are paid by the student or hostelier. The charges are of two types. One is fixed charge. Let fixed charge of in hostel is rupees X, and thereafter charge per day if the hostelier or a student take the food from the mess. तो चार्ज फॉर फूड पर डे, एक दिन के फूड का चार्ज हमने मान लिया y है. एक स्टूडेंट जिसका नाम A है, उसने 20 दिन 20 डेज तक हॉस्टल में रहा, फूड भी लिया, तो उसको चार्ज देना पड़ेगा फिक्स चार्ज ₹X, और पर डे फूड का चार्ज y है, तो 20 डेज का फूड कॉस्ट इज 20y and collectively he had paid ₹1,000. उसने 1,000 रुपया पे किया, जिसमें फिक्स्ड चार्ज भी है और 20 डेज का मेस चार्ज और फूड चार्ज है. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. सेकेंड इक्वेशन, द सेम हॉस्टेलियर इन सेम हॉस्टल, कैंडिडेट बी stay for 26 days, so he pay fixed charge along with charge of food for 26 days, which is 26y. दूसरा स्टूडेंट
बी जो 26 डेज तक रहता है तो खाने का खर्च फूड चार्ज 26 मल्टीप्लाइड बाई वाई प्लस फिक्स चार्ज दोनों मिला करके इसको पे करना पड़ता है 1180 1180 दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से सॉल्व करते हैं। इस इक्वेशन को और सिंपल बनाएं क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड के लिए हमें इस कांस्टेंट टर्म को इधर लाना होता है तो x प्लस 20y माइनस 1000 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड x प्लस 26y माइनस 1180 is equal to 0. This is simplified form of equation number 2. अब हम कोएफिशिएंट लिखना शुरू करते हैं। पहले y का कोएफिशिएंट जो 20 और 26 है, then constant term which is minus 1000 and minus 1180. कांस्टेंट टर्म के बाद कोएफिशिएंट ऑफ x which is 1 and 1 and then coefficient of y which is 20 and 20. यहाँ पर लिखते हैं x, यहाँ y और यहाँ 1। अब मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ x अपॉन डायगोनली इस एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं 20 मल्टीप्लाइड बाई 1180 which is equal to negative 236 23,600 माइनस का साइन ब्रैकेट दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस इज negative 26,000 इज इक्वल टू y अपॉन this multiplied by this minus this multiplied by this 1000 multiplied by negative 1000 multiplied by 1 is negative 1000 minus bracket negative 1180 multiplied by 1 which is negative 1180 is equal to 1 upon 1 into 26 minus 1 into 20 which is 26 minus 20। इस रिलेशन को और मॉडिफाई करते हैं x अपॉन negative 23,600 नेगेटिव एंड नेगेटिव पॉजिटिव 26,000 इज इक्वल टू y अपॉन negative 1000 नेगेटिव एंड नेगेटिव पॉजिटिव 1180 is equal to 1 upon 26 minus 20 is 6. In next turn हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 26,000 minus 23,600 which is equal to 2,400. x is equal x upon 2,400 and this y upon 1180 minus 1000 is 180 is equal to 1 upon 6. To find the value of x हम इस रिलेशन को इक्वेट करके मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब x अपॉन 2,400 इज इक्वल टू 1 अपॉन 6। इसका मतलब x इज इक्वल टू लिखें तो दिस इज मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन 6। x इज इक्वल टू
1/6 मल्टीप्लाइड बाय 2400 कटेगा 6 4 जा 24 400 x is equal to 400 which is the fixed charge. Fixed charge 400 हो गया and charge per day for food is y upon, we can get charge per day of food by equating these two equations. Y upon 180 is equal to 1/6. This implies that y is equal to 1/6 multiplied by 180. 6 3 is 18 and 0 30. Y का वैल्यू आ गया 30. अब इसका मतलब हुआ फिक्स्ड मेस चार्ज और फिक्स्ड चार्ज इन हॉस्टल इज 400. Fixed charge is rupees 400 and charge per day for food or per day food cost in the hostel, which is y, and y is equal to rupees 30. This is your answer. A fraction becomes 1/3 when 1 is subtracted from the numerator and it becomes 1/4 when 8 is added to the denominator. Find the fraction. Second part of question number 4 is based on fraction, and as we tell earlier that for fraction question, first of all, let's assume fraction is equal to x upon y, where x is numerator and y is denominator. तो क्वेश्चन है कि किसी गिवन फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में 1 सब्ट्रैक्ट कर लें और y को जैसा है वैसा ही लिखें, तो फ्रैक्शन होगा x माइनस वाई, x माइनस 1 अपॉन y इज इक्वल टू फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1/3. फ्रैक्शन 1/3 बन जाएगा. इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें. 3x माइनस 3 इज इक्वल टू y. इस y को इधर ले आए. 3x माइनस y माइनस 3 इज इक्वल टू 0. This is equation number 1. And next part of the same question state that कि अगर डिनोमिनेटर में ओनली डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर दें तो न्यूमरेटर जैसा है रिमेन सेम, बट डिनोमिनेटर इज एडेड बाय 8 और 8 इज एडेड बाय डिनोमिनेटर, इट इज y plus 8. Then fraction become 1/4. इसको भी सिंप्लीफाई करें. 4x इज इक्वल टू y plus 8. y plus 8 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें. y plus 8 दोनों को लेफ्ट साइड में ले आए, LHS में लाए. 4x माइनस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0. दोनों इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को साइमल्टेनियसली एक जगह पे रखें और इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करें. फर्स्ट इज 3x माइनस वाई इज माइनस 3 इज इक्वल टू 0. सेकेंड इज 4x माइनस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0. अब लिखे हम कोएफिशिएंट लिखना शुरू करें. y से -1, -1, -3, -8, then 3 4, coefficient of x 3 4, then -1, -1.
these two are coefficients of y, and this is coefficient of constant term, and this is coefficient of x. Now in between first two columns we put x, second and third column we put y, and third and fourth column we put 1. अब इसको सॉल्व करते हैं. x अपॉन this multiplied by this -1 -8 is +8 minus -1 into -3 is +3 is equal to y upon -3 multiplied by 4 is -12 minus -8 into 3 is equal to -24 is equal to 1 upon 3 into -1, which is -3, minus 4 into -1, which is -4. नेक्स्ट सिंप्लीफाई करें इक्वेशन रिलेशन को, और x अपॉन 5 इज इक्वल टू y अपॉन -12 प्लस 24 इज +12 इज इक्वल टू 1 upon -3 44 is 1. This implies that x is equal to 1 multiplied by 5 is 5, and y is equal to 1 multiplied by 12, which is 12. Now the fraction is equal to, this is the original fraction which is x upon y. Now we can write आंसर लिखने के लिए जो हमने फ्रैक्शन एज्यूम किया है उसमें x और y का वैल्यू शिफ्ट कर दें, जो 5 अपॉन 12 है. तो ओरिजिनल फ्रैक्शन इज इक्वल टू 5 अपॉन 12. दिस इज द आंसर. Yash scored 40 marks in a test, getting 3 marks for each right answer and losing 1 mark for each wrong answer. Had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for each incorrect answer, then Yash would have scored 50 marks. How many questions were there in the test? थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 में एक कैंडिडेट यश है. नंबर ऑफ क्वेश्चन ही अटेम्प्टेड करेक्टली इज x, and he gives y number of question wrong answer, and the condition ये है कि अगर राइट आंसर किया है तो उसको 3 नंबर मिलेंगे, एक क्वेश्चन के 3 मार्क्स मिलेंगे. और जस्ट एक राइट आंसर सॉल्व किया है तो इसका टोटल मार्क्स 3x हो जाएगा. और y नंबर रॉन्ग किया है, इस रॉन्ग आंसर के लिए -1 मार्क्स कटेगा. तो इसमें y आंसर रॉन्ग किया है. y नंबर ऑफ क्वेश्चंस wrongly answered by Yash. So he got -1 into y marks, and total marks he scored is 40. If right answered question have added 4 marks, then तब यश को अपने राइट आंसर के लिए 4x मार्क्स मिल जाता. एवरी रॉन्ग आंसर्ड क्वेश्चन डिडक्टेड 2 मार्क्स, तो यश का मार्क्स 2y डिडक्ट हो जाता, एंड देन टोटल मार्क्स ही वुड गॉट 50. इसको हमें सॉल्व करना है बाय द मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. फिर इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करके लिखते हैं. 3x minus y minus 40 is equal to 0, and 4x minus 2y minus 50 is equal to 0. This is equation number 1. This is equation number 2.
अब हम यहाँ पे लिखते हैं y का कोएफिशिएंट -1, -2, -50, 40, -50 and then x का कोएफिशिएंट 3, 4 and coefficient of y repeated again -1, -2. अब इन बिटवीन these two columns यहाँ पे x लिखते हैं, यहाँ पर y और यहाँ पर 1. इन नेक्स्ट प्रोसेस हम लिखते हैं x अपॉन दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, -1 मल्टीप्लाइड बाय -50 is +50 minus this multiplied by this -2 multiplied by -40 is +80 is equal to y upon -40 multiplied by 4 is -160 minus 50 multiplied by 3 is -150. -150 is equal to 1 upon 3 multiplied by -2 which is -6 minus 4 multiplied by -1 which is -4. इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, x अपॉन -30 is equal to y upon -160 negative positive 150 is equal to 1 upon -6 plus 4 positive 4 is -2. अब x अपॉन -30 इनको सॉल्व करें, x is equal to -1 upon 2 multiplied by -30, negative and negative multiply to get positive और 2 15 या 30. आंसर इज 50. x is equal to 15. सेकेंड, इस रिलेशन को सॉल्व करें, y अपॉन -10 -160 positive 150 get -10 is equal to 1 upon -2. नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा. दिस implies that y is equal to -1 upon 2 multiplied by -10. 2 5 are 10 and 2 negative multiply to get positive. So y is equal to 5. Thus answer is x is equal to 15 and y is equal to 5. इसका मतलब हुआ यस ने टोटल 20 क्वेश्चंस में 15 क्वेश्चंस के राइट आंसर दिए एंड 5 क्वेश्चंस के रॉन्ग आंसर दिए. टोटल क्वेश्चन अटेम्प्टेड बाय यश इज total questions attempted is equal to x plus y which is equal to 15 plus 5 which is 20. Places A and B are 100 km apart on a highway. One car starts from A and another from B at the same time. If the cars travel in the same direction at different speeds, they meet in 5 hours. If they travel towards each other, they meet in 1 hour. What are the speeds of the two cars? On highway, places A and B are 100 kilometer apart. 100 किलोमीटर डिस्टेंस से दो प्लेस है A and B. तो A से कार स्टार्ट होता है और B से कार स्टार्ट होता है. दोनों अगर सेम ही डायरेक्शन में चलते हैं तो 100 किलोमीटर का फासला जो गैप है उसको पूरा करने में ज्यादा टाइम लगेगा. ये भी चलेगा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में और ये इसको पकड़ने के लिए चलेगा, बट दे मीट आफ्टर लॉन्ग टाइम.
because both move in same direction. So in this case, speed of faster vehicle minus speed of slower vehicle. Let speed of car which is at place A is x and speed of car which is at place B is y. So car at a speed of car which is at A is x kilometer per hour and speed of car which is at place B is y kilometer per hour. Then when both car, जब दोनों कार एक ही डायरेक्शन में चलेंगे तो रिलेटिव स्पीड कहें या फिर इस स्पीड को याद रखें कि लार्जर स्पीड ग्रेटर स्पीड माइनस स्मॉलर स्पीड होगा। अब स्टूडेंट को इस तरीके से समझना चाहिए कि जब दो ट्रेवलिंग बॉडी चल रहा हो सेम डायरेक्शन में, देन रिलेटिव स्पीड एक कंसेप्ट है। रिलेटिव स्पीड का मतलब स्पीड ऑफ लार्जर बॉडी माइनस स्पीड ऑफ स्मॉलर बॉडी, जब वो सेम डायरेक्शन में चल रहे होंगे देन नेट स्पीड इज x माइनस वाई एंड स्पीड इज इक्वल टू एंड डिस्टेंस जितना इनके पास इनिशियल गैप है, डिस्टेंस है, दैट इज एज्यूम्ड एज डिस्टेंस। तो दिस डिस्टेंस इज 100 किलोमीटर and time taken is 5 hours, then distance upon time is equal to net speed. So x minus y is equal to 20. X minus y is 20. This is equation number 1. If both cars travel in opposite direction, एक इधर चल रहा हो और एक कार भी इधर चल रहा हो, तो ये स्पीड इस केस में एड अप हो जाता है एंड डिस्टेंस रिमेन द सेम 100 किलोमीटर। तो व्हेन दे ट्रेवल इन अपोजिट डायरेक्शन, the relative speed is either it is relative speed or you can say net speed is x plus y, which is equal to distance covered which is 100 kilometer upon time taken is 1 hour. Distance upon time. So equation 2 को सिंप्लीफाई करें, it is x plus y minus 100 is equal to 0. Equation 2 and equation 1 is x minus y minus 20 is equal to 0. अब हम इस इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। राइट द कोएफिशिएंट ऑफ y which is 1 and minus 1. Constant term is negative 100, negative 20. Coefficient of x 1 and 1, and then coefficient of y is repeated here 1 and minus 1. यहाँ लिखते हैं x, y and 1. This multiplied by this minus this multiplied by this. 1 into negative 20 x upon negative 20 minus 1 into minus 100 is plus 100 is equal to y upon negative 100 minus negative 20 is equal to 1 upon negative 1 minus 1 into 1 is 1.
x upon negative 120 is equal to y upon negative 100 plus 20 is negative 80 is equal to 1 upon negative 1 is negative 2. अब हम इस दो पेयर को सॉल्व करें. x is equal to negative 1 up by 2 multiplied by negative 120 which is 60 and two negative multiplied together to be positive. So here positive 60. X is speed of x is 60 kilometer per hour. Now put the value of x. Now consider last two relation y minus now consider last two relation y upon minus 80 is equal to 1 upon minus 2. Here y is equal to negative 80 को negative हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे. negative 80 240 या 80 नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा. तो y is equal to 40 किलोमीटर पर आवर and x is equal to 60 kilometer per hour. This is the speed of cars at place B and at place A. Fifth part. The area of a rectangle gets reduced by 9 square units if its length is reduced by 5 units and breadth is increased by 3 units. If we increase the length by 3 units and the breadth by 2 units, the area increases by 67 square units. Find the dimensions of rectangle. Question number 5. Here is a rectangle. एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ x है एंड ब्रेथ y है. तो इन फर्स्ट केस area of rectangle is equal to x into y, and in next case when length is decreased by 5 units and breadth is increased by 3 units, the area of rectangle decreased by 9 units. अगर लेंथ को हम 5 रिड्यूस कर दें और ब्रेथ को 3 इंक्रीज कर दें, देन इस केस में एरिया x माइनस 5 लेंथ इंटू y प्लस 3 ब्रेथ, बट ये ओरिजिनल एरिया से 9 यूनिट रिड्यूस हो गया है. ओरिजिनल एरिया xy था, उसमें से 9 यूनिट कम हो गया. इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी xy प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 इज इक्वल टू RHS लिखते हैं xy माइनस 9. xy को अगर हम LHS में लाएं तो xy निगेटिव होगा और इस xy के साथ कैंसिल हो जाएगा. नाउ फ्रेश इक्वेशन जो बचा 3x माइनस 5y माइनस 15 और नेगेटिव 9 इधर आकर के पॉजिटिव 9 होगा, बिकम नेगेटिव 6 इज इक्वल टू 0. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. इन नेक्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट. तो ओरिजिनल लेंथ x था, उसको 3 यूनिट बढ़ा लिया, and breadth of the rectangle is also increased by 2 unit. इसके breadth को 2 unit बढ़ा लिया. Then new area which is length into breadth x plus 3 into y plus 2 get increased by original area by 67. अगर लेंथ में 3 बढ़ा दें, ब्रेथ में 2 इंक्रीज कर दें, बढ़ा दें,
तो जो ओरिजिनल एरिया है उससे हमारा नया एरिया 67 ज्यादा होगा। अब इसको फिर से सिंप्लीफाई करें, एक्स वाई 2x एक्स मल्टीप्लाइड बाई वाई इज एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y इंटू प्लस 6 प्लस 3y प्लस 3 2 जा 6 इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67। इस एक्स वाई को अगर एलएचएस में लाएं तो नेगेटिव होगा और ये नेगेटिव और इस पॉजिटिव के साथ कैंसिल हो जाएगा। इन नेक्स्ट स्टेप 2x प्लस 3y प्लस 6 माइनस 67 इज माइनस 61 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशन को एक जगह पे कलेक्ट करते हैं, देन सॉल्व करते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब हम डाटा यहाँ y के कोएफिशिएंट से लिखना शुरू करते हैं। -5 3 -6 -61 3 2 and then -5 3। फिर से यहाँ x y and 1 सॉल्व करने के लिए x अपॉन -5 -61 मल्टीप्लाई करते हैं पॉजिटिव 305 माइनस 3 6 18 -18 इज इक्वल टू y अपॉन -12 माइनस 61 इंटू 3 -3 -183 इज इक्वल टू दिस 3 3 जा 9 1 अपॉन 9 माइनस -10। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं x अपॉन 305 प्लस 18 विच इज 323 इज इक्वल टू y अपॉन -12 पॉजिटिव 183। इसको सिंप्लीफाई करके आंसर 171 आएगा। एंड 1 अपॉन 9 प्लस 10 नेगेटिव नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव 9 प्लस 10 इज 19। नेक्स्ट अब x का वैल्यू निकालना है, तो हम इस दो इक्वेशन को सॉल्व करें, दो रिलेशन को सॉल्व करें। x इज इक्वल टू 1/19 मल्टीप्लाइड बाई 323। इसको काटते हैं तो 19 को अगर 17 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 323 आएगा। इट मीन्स की 17 टाइम्स कट गया। x इज इक्वल टू 17 and this is the length of original length of rectangle and y is equal to 1 upon 19 multiplied by 171। 19 9 जा 171, तो ये 9 जा लगा तो y is equal to 9। इस तरह से हमें मिलता है x is equal to 17 यूनिट and y is equal to 9 units. This is the length and breadth of rectangle originally. This is your answer.